Ministry of HRD, and Government of India for technical courses, and Bar Council of India for law courses. The institute is accredited as Category A by National Assessment and Accreditation Council, and assessed as Category A class by State Regulatory Committee, a free committee of Government of NCT of Delhi, and rated highest rating A by Joint Inspection Committee of Government of NCT of Delhi and GSIFA University. The institute has been rated A plus by Academic Audit Cell of GSIFA University consecutively from the past 5 years. It has also been rated as number 2 by the Times B School Survey 2021. The institute conducts postgraduate courses of MBA, first and second shift, MBA International Business, and undergraduate courses of BBA first and second shift, BBA LLB, and BA LLB. The emphasis at GIPS is on the overall personality development of students in order for them to face challenges in their competitive professional lives with a value-based approach. At GIPS, thrust is on overall development of students so that they can face the challenges in their competitive professional lives with a value-based approach. GIPS has constituted its IIC, that is Institute Innovation and Entrepreneurship Cell, under the guidance of MOE IIC, keeps on organizing webinars and workshops to further the cause of entrepreneurship. This webinar is also the part of the initiative undertaken by IIC. Entrepreneurship and innovation are central to Prime Minister Modi's vision for transforming India, which makes even it more relevant. Today is the day of immense opportunity and growth as we gather here to explore the fascinating world of entrepreneurship. We are fortunate to have a distinguished guest speaker with us who will lead a session on entrepreneurship skills, attitude, and behavior development. This session holds a treasure trove of benefit for all of us, as it serves as a bridge between the theoretical knowledge we acquire in classrooms and the practical wisdom required to thrive in the business world. Additionally, our guest speaker brings with them a wealth of experience and a network that can open doors to invaluable connections and mentorship. So take full advantage of this session to not only gain knowledge, but also to network and build relationships with professionals who have walked the entrepreneurial path. Objectives of the events are to equip students with essential entrepreneurship skills, to foster behavior changes in students, to foster critical thinking and entrepreneurial mindset, preparing students for future business challenges and opportunities. In order to fulfill these objectives, I introduce our esteemed guest speaker for today's session, Dr. Shankar Goenka. Dr. Shankar Goenka is a name that resonates with the expertise, vision and the profound commitment to personal and professional growth. Sir is a multifaceted individual with incredible grace and distinction. He is not only an accomplished author but also a renowned coach and TEDx speaker whose insights have inspired countless individuals to achieve their dreams. As the Managing Director of Wow Factors India Private Limited, Dr. Goenka has been at the helm of innovative and transformative initiatives that have left an indelible mark on the business landscape. Dr. Goenka's commitment to skill development is commendable as he serves as the International Advisor of the National Skill Development Corporation since February 2022. In addition to his professional endeavors, Dr. Goenka also plays a pivotal role. Thank you very much. Request Director Sir to provide settling to serve. Just a small formality and then the stage is yours. Welcome you, sir. I hope you all in breakfast. Good morning. कैसे हैं? So this is your first year? Yes. So what do you expect out of your life? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं? सब लोग? हाँ जी, सब लोग? कितने श्योर हो? So
So देखिए अभी जो ये 8-10 लोग हैं, खाली यही लोग कामयाब होना चाह रहे हैं। बाकी के लोगों को कितना जोर आ रहा है कि वी शुड से कि हम कामयाब होना चाहते हैं। तो मेरा ये मानना लाइफ में कि 90% लोग जो पढ़ते हैं वो करते नहीं, और जो काम वो करते हैं उसकी उन्होंने कभी पढ़ाई। यू आस्क योर सीनियर्स और यू आस्क योर पेरेंट्स, यू आस्क मेनी पीपल अराउंड यू, एंड दे वुड से कि जो उन्होंने पढ़ा था वो बिल्कुल वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे। So if you ask me, I got the same story and I studied in Birla School Pilani, Rajasthan. क्लास 10th में आया, दोस्तों से पूछा क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, दोस्तों ने कहा शंकर अकाउंट्स ले ले। मैंने कहा क्यों? बोले बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। So I was very happy कि कम पढ़ना पड़ेगा and I took accounts. Went to Mumbai, started doing my BCom, और जब मैं BCom पढ़ने लगा तो 88-89 was the time when people wanted to do MBA. So I called up my father, I said, Dad, I want to do MBA, and my father fired me. बोले पागल हो गया, मारवाड़ी का बच्चा है, तू CA कर। मैंने कहा कि सीए मुझे नहीं समझ में आती। बोले इससे हमारा कोई लेन देन ही नहीं, मुझे क्या समझ में आता है नहीं आता, यू मस्ट डू सीए। पेरेंट्स की बात माननी पड़ती क्योंकि जेब उनकी भारी होती है। सो आई स्टडीड मेनी कोर्सेज इन इंडिया, देन आई वेंट टू लंदन, स्टार्टेड डूइंग देयर। और चूंकि मेरे फादर एक भारत के नॉन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सो एंड वी आर इनटू स्पिनिंग। स्पिनिंग समझते हैं यहाँ जिससे धागा बनता है, जिससे आपके कपड़े बनते हैं। सो पढ़ने के लिए मैं इटली गया, जीवन के और इतना सारा बोझ, इतनी सारी डिग्री उठा के मैं भारत आया, और जीवन के 16 साल मैंने अपने फादर की 19 फैक्ट्रीज रन करी। 10th October 2006 I went to him and I said, Dad, I don't want to be an industrialist. तो बोले क्या करेगा? I said, Dad, I want to be a teacher. एंड हमारे मारवाड़ी घरानों में क्या होता है, वन वे ट्रैफिक चलता है, इससे अच्छा मास्टर बनेगा। मैंने कहा जी डैड, एंड ही सेड गेट लॉस्ट, और मुझे घर से निकाल दिया गया। तब 100 रुपये लेकर मैं नांदेड़ से दिल्ली आया, एंड निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन 3 रात सोया। चौथे दिन मुझे 10,000 रुपये की एयरपोर्ट पे नौकरी मिली, एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माई करियर अगेन ऑन 14th October 2006। और इन 14-16 सालों में क्या किया? तो 10 लाख बच्चों को पढ़ाया, 2 लाख टीचर्स को पढ़ाया, 1 लाख कंपनी के PSUs के लोगों को पढ़ाया, कुछ किताबें लिखी। आई वर्क ऑन पेरेंटिंग, आई गो टू 40 कंट्रीज टू ट्रेन इन 12 लैंग्वेजेस, और स्कूल्स बनाए गोइंका पब्लिक स्कूल्स के नाम से, और कुछ NGO चला रहा हूँ। आई अडॉप्टेड 50 children. I adopt a child when he or she 3-year-old and keep them for 22 years. मैंने देश को 3 डॉक्टर्स दिए हैं, CA, CS, इंजीनियर्स, IAS, IPS तो बहुत सारे दिए। So the point I'm trying to tell you guys, it's your first year in college. It's so very important to identify in your life कि मैं करना क्या चाहता हूँ। तो जो मैंने आपसे कहा कि मैं सक्सेस की, जो मैंने आपसे कही कि आप में से कितने लोग सक्सेस होना चाहते हैं, तो कईयों ने कहा हाँ ना, इसने हाथ खड़ा करा, मैं भी हाथ खड़ा कर दूँ। माई फर्स्ट मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज, सो इफ यू आस्क मी, आई एम सिंपली अ टीचर, बट दैट्स व्हाट आई लव एंड एंजॉय इन माई लाइफ। आई हैपन टू स्पीक एट TEDx, एंड विद गॉड ब्लेसिंग आई एम द ओनली वन इन द वर्ल्ड हु स्पोक फॉर 32 minutes। TEDx में खाली 18 मिनट मिलते हैं बात करने को। सो व्हेन आई डिड द शूटिंग, दे टुक 4 months to decide कि हम अपना वीडियो कहाँ से एडिट करें, कहाँ से कट करें। So they were able to cut only 1 minute, and my 32 minutes video uploaded on TEDx. So that's what God is honestly very, very kind enough to me. As far as Geeta Ratan is concerned, I've been associated for last 10-12 years. और जैसे मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, आपके बहुत सारे बच्चे को मैंने पढ़ाया है, and I got many success stories in Geeta Ratan जो कि आज बहुत कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं। And I always tell Mr. Jindal कि जो बच्चे हमारे कामयाब हैं उनको बुलाएं, and many of them are running very, very success stories, and everyone is in touch with me, and they said कि sir, you just said one point and I feel that is what has clicked me, and that so instead of doing job we decided कि हमें अपना business कैसे करना है। So I help children how they can start their business, how they can start their entrepreneurship journey. I have a small incubation center at Okla where I kept 50 machines, और वो छोटी छोटी machines हैं। तो if you have to start business, you can run a business at IIT, then I take a class of 24 hours creating business plan. So children start with me at 10 o'clock in the morning and they finish next day after 24 hours, 10 o'clock in the morning, and we come out with a business plan. And I've got many successful entrepreneurs in the country, so that is what, यही ईश्वर की कृपा है जो कि मैं काम कर पा रहा हूँ। So please help me to understand what do you expect out of me today. So I got exactly 40 minutes. I'm going to finish sharp 11 o'clock. So let's see how meaningful this session is to all of you.
So please help me to understand कि आप मेरे से क्या उम्मीद करते हैं अभी? You need to raise your hand and ask me. You got mic please? Sir mic है? तो मोटिवेशन की बात ये कि आपको कोई भी काम करना है, आप एक प्रोफेशनल स्टडीज में यहाँ पर आए हैं, तो आपने खाली डिग्री नहीं लेनी। बिलीव मी, आफ्टर आई केम इनटू टीचिंग, मेरा स्कूल बिरला स्कूल गिलानी का 120 साल पुराना है और अपने 120 साल स्कूल के अंदर में चीफ गेस्ट बन के गया ऑन दिस थिंग, आपका जो फाउंडेशन डे होता है। सो ऑल माय फ्रेंड्स, क्योंकि मैं तो 40-50% का बच्चा था, बहुत रोज होके पास होता था, एंड ऑल माय फ्रेंड्स, अरे तू तो पढ़ता ही नहीं था, तू कैसे बन के गया? तो मैं कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई अपनी जगह, डिग्री अपनी जगह है, और कामयाबी और काम करना बिल्कुल डिफरेंट है। सो यू ऑल नीड टू क्रिएट अ विजन फॉर यू कि बॉस, ये जो आप क्लासेस लेना है, क्यों लेने हैं, आपका पर्पस क्या है, व्हाट यू वांट टू अचीव आउट ऑफ दिस क्लास। डिग्री लेने के बाद में आई वांट टू टेल यू कि इस साल 2023 के अंदर जो टॉप 10 बच्चे आईआईटी गए हैं, दे सेज वी डोंट नो बी इन आईआईटी नाउ, दे चोज डिफरेंट प्रोफेशन। योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन मैम। मोटिवेशन, यू नीड टू हैव अ बिजनेस प्लान, और उस बिजनेस प्लान पे आपको कन्विक्स होना पड़ेगा, यस आई वांट टू डू दिस एंड आई एम श्योर यू गेट अ पाथ। आप में से किसी को भी बिजनेस प्लान बनाने में कोई मदद चाहिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। यदि आप में से किसी को फंड्स चाहिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ फंड अवेलेबल एंड यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट एनीथिंग, you just need to have a solid business plan. You should be sure about it that yes, I want to achieve this and there is a way for it. पर उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचो सब काम मुझे गूगल पे मिल जाएगा, नहीं होगा। यदि आपको बिहेवियर सीखना है कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, go stand in front of petrol pump, go get into the shopping mall, stand there for 1 hour 2 hour and identify कि लोगों का चेहरा कैसा है, बात कैसे करते हैं, जब वो पैसे देते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं। For example, today morning I came to your college and I need to spend 20 minutes at the gate to get into the college. मैं सुबह 2.5 घंटे लगे मुझे घर से आने में, due to the traffic. I left my home on time and it took me 20 minutes to get into your college. Can you imagine? But you need to understand the psyche of the people. That is how people behave. Business करना, entrepreneurship is not about starting a business. Entrepreneurship is all about starting a business which works. So you need to have a plan which works. और उसके लिए आपको you need to go down to the ground. खाली आप सोचेंगे कि हम यहाँ पढ़ लिए, प्रोफेशनल कोर्स कर लिया और हम आके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, माल बिक जाएगा, ऐसा नहीं है। You go to a showroom, you take 1 hour, half an hour to buy one shirt, isn't it? कि कौन सा कलर है, कैसा है, फिट आता है, नहीं आता है। In the same way, कोई भी चीज बनती है, वो मास स्केल में बनती है, पर जब वो बिकती है तब वो एक पीस से बिकती है। Running a business is not a rocket science, but with my little experience of life, it is definitely a science, and you need to make a plan for your science. Are you with me? Any other question? Someone raise here from this side. So I have 2 ways of taking session. क्या तो मैं अपनी बात कथा को गा के चला जाऊं, या फिर we should do an interactive session जहां पर हम एक दूसरे से बात कर सकें. Yes, ma'am. So I want you, all of you, to give a good round of applause to her because she had a courage to stand up and ask. I'm sure आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सबके मन में सब कुछ है, कुछ न कुछ पूछना चाहते हैं, पर सबको डर है कि मैं क्या बोलूँगा या लोग क्या रिएक्ट करेंगे। आप लोगों के चक्कर में मत पड़िए। लोग इसलिए खुश नहीं कि वो खुश है, लोग इसलिए दुखी है कि आप खुश हैं। So please be sure what you want to achieve in life. That what I feel is very important. Yes, ma'am. सर गुड मॉर्निंग, आई एम अंशिका। सर आई वांट टू स्टार्ट माय ओन ब्रांड, बट मुझे ये नहीं पता कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। ब्रांड किस चीज़ का? परफ्यूम का। So आपको क्या नहीं पता लग रहा है कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं है। Very good. So you just want to do perfume, but why perfume? क्योंकि मुझे लाइक वो जो मिस्ट परफ्यूम्स होते हैं वो सबसे डिफरेंट होते हैं। मुझे स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स नहीं पसंद, वो बहुत सिर पे चढ़ते हैं, और मुझे ओशनिक परफ्यूम बनाना है जो मिस्ट होते हैं, तो मैं उसका ब्रांड स्टार्ट करना चाहती हूँ और सबको अवेयर करना चाहती हूँ उसके बारे में कि वो डिफरेंट होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। तो आपको परफ्यूम का क्या पसंद है? वो जो guys listen to, देखो मैं 4-5 क्वेश्चन में आप सबकी कहानी ठीक कर दूंगा। So just
वी गॉट ओनली 35 मिनट्स नाउ, सो प्लीज बियर विद मी। इसके बाद में गप करने का आपको बहुत मौका मिलेगा। एंड आई एम श्योर यू हैव समथिंग स्ट्रांग इन योर माइंड। यस मैम, सो परफ्यूम का क्या पसंद है आपको? इरिटेटिंग जो होती है ना स्मेल, वो परफ्यूम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वैसा परफ्यूम क्रिएट करूँ जो सबको पसंद आए और मिस्ट हो काफी। ओके, different सो लेट्स गो बाय हर क्वेश्चन। उन्होंने कहा कि मुझे उसकी स्मेल नहीं पसंद। तो बेटा सबसे पहले तो चूज राइट वर्ड्स। जो बदबू होती है उसको स्मेल बोलते हैं, फ्रेग्रेंस, जो खुशबू होती है उसको फ्रेग्रेंस बोलते हैं, है ना? तो आपने क्या कहना है? पहली बात आपने शब्द ठीक करना है। आई एम रीडिंग अ न्यू बुक कॉल्ड वर्ड्स कैन चेंज योर ब्रेन। वर्ड्स कैन हील यू और वर्ड्स कैन हर्ट यू। शब्द आपको खुश कर सकते हैं और शब्द आपको नाराज भी कर सकते हैं। तो पहली बात तो शब्द आपने कहा कि, दूसरी बात आपने कहा कि मुझे नहीं पसंद। बिजनेस इज नॉट अबाउट आपको क्या पसंद है नहीं पसंद है, बिजनेस इज ऑल अबाउट सामने वाले को क्या पसंद है। मैंने नोटिस किया है कि बहुत लोगों को वो स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं पसंद होती। कैसे मालूम? कितनी R&D करी आपने? मैंने काफी मतलब अपने सराउंडिंग्स में जितने भी लोग होते हैं उनसे काफी बार पूछा है। कितने? 10, 5, 20, 100, 200? मेरा क्वेश्चन ही पहला यही होता है जब मैं किसी नए पर्सन से मिलती हूँ तो परफ्यूम्स कैसे पसंद है। तो आप एक काम करिए, जनपद मालूम है आपको? दिल्ली में CP मालूम है? कैनॉट प्लेस? Yes. कैनॉट प्लेस पे एक शॉप है जैन परफ्यूम्स के नाम से, 105 जनपद। जब आप जनपद रोड पे जाएंगे किसी को भी पूछेंगे, छोटी छोटी दुकानें वहां पे जाइए। मेरी नजर में वन ऑफ द फाइनेस्ट परफ्यूम शॉप है। उसकी फ्रेग्रेंस नेक्स्ट लेवल है। आप वहां जाइए, उनको पूछिए कि सर मेरी सैटरडे संडे छुट्टी होती है, आपका कब ब्रेक डे होता है, वीक डे कब होता है आपका? संडे एंड मंडे। संडे एंड मंडे। तो बोला सर क्या मैं आपके इंटर्न कर सकती हूँ? स्पेंड टाइम ओवर देयर एवरी सैटरडे संडे और मंडे व्हाटएवर वीकडेज यू हैव, यू मस्ट गो एंड टाइम स्पेंड टाइम विद दैट। अब बोला मैं कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और मैं इंटर्न बनना चाहती हूँ, यदि आपको मना करे तो मेरा नाम ले लीजिएगा कि डॉक्टर गोयनका ने कहा है। और वहां जाकर पहले आप ये देखिए कि बॉस परफ्यूम है क्या, चलता कैसे। आपको लग रहा है कि मेरा सर्कल मुझे कहता है कि स्ट्रॉन्ग परफ्यूम नहीं चाहिए, बट आई नो सो मेनी पीपल दे नीड टफ परफ्यूम। लाइफ में हम कोई भी काम शुरू करते हैं, हमको क्या लगता है मुझे क्या पसंद है, आपका पसंद की बात नहीं। एंड दिस आई लर्न फ्रॉम अ यंग बॉय, आई वेंट टू MIT एंड ही इज इनटू क्रिएटिव, ही इज इनटू सोशल मीडिया। तो जब मैंने बात करी उसने कहा सर मैं आपके लिए सोशल मीडिया करना चाहता हूँ। मैंने कॉल राइट, सो ही जॉइनिंग मी एज एन इंटर्न एंड आई सेड कि ओके। तो उसने कलर का कॉम्बिनेशन बना के दिया मेरे पोस्टर का, तो उसने मुझे सिखाया। यंग बॉय 23 ईयर ओल्ड, उसने कहा सर मार्केटिंग इज नॉट अबाउट आपको क्या पसंद है, पर सर ये कलर इस समय ट्रेंड में है एंड इट बिकम सुपर हिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बिजनेस का पहला मंत्र है यू नीड टू हैव अ स्ट्रांग होमवर्क। आपके पास जो भी बिजनेस आइडिया है, आप लोग जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आप उसके लिए ग्राउंड वर्क पे काम करिए। आप एज ए इंटर्न काम करिए। 2 दिन यदि आपकी छुट्टी है, घर पे मत बैठिए, घर पे रहकर दोस्तों के साथ जाकर आप खाली मोबाइल पे काम करेंगे। You know, just 2 years back, I started a drone business. We make agriculture spraying drone. अभी 2 साल पूरे होंगे, and within 2 years, we became India's largest company. With nowhere, drone का मुझे मेरे पिताजी को मेरे को भी आइडिया नहीं था कि ड्रोन क्या होता है। But I speak at Government of India, and I just happened to speak, did a program at Bhavnagar in Gujarat with Fertilizer Mantri, and on 7th of October 2021. Prime Minister Modi spoke about me in Mann Ki Baat and we became national hero overnight. Are you getting the point? तो मेरा कहना था कोई भी बिजनेस आपको यदि करना है बेटा, तो आपको उसके लिए यू हैव टू राइट बिजनेस प्लान। और आप जाकर जैसे परफ्यूम की जॉब पे काम करेंगे, इंटर्न करेंगे, उनका सर मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बट दैट लर्निंग वुड हेल्प यू इन योर लाइफ एंड यू गेट टू नो कि जब लोग परफ्यूम लेने आते हैं उनको क्या पसंद है, कैसे वो टेस्ट करते हैं, कैसे वो सूंघते हैं, कैसे वो मुंह बनाते हैं, किस टाइप की फ्रेग्रेंस उनको पसंद है, कौन सी फ्रेग्रेंस उनके चेहरे पे स्माइल ला सकती है और कौन सी फ्रेग्रेंस ऐसी है जो उनको 1 सेकंड में ऑफ कर सकती है। एंड दैट इज हाउ यू स्टार्ट अ बिजनेस। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। एनीवन एल्स प्लीज? यस सर। आर यू बेटा? थैंक यू। आई होप आई एम मेकिंग सेंस गाइस। हाँ, क्योंकि आपका सवाल लेने से पहले इस सोसाइटी में, इस पूरे कमरे में 2 तरह के लोग हैं। एक लोग कौन है जो रोज सुबह उठते हैं और उनको मालूम है कि मेरे को शूट कहां करना है, एंड व्हाट दे डू अ शूट। आवाज नहीं आ रही ऑडियो, अदरवाइज जोड़ा इस अंदर शूट सॉन्ग।
और एक दूसरी कैटेगरी के लोग कौन है, वो भी रोज सुबह उठते हैं और वो उठकर क्या करते हैं, पहले शूट करते हैं और जहां गोली लगी हो क्या कहते हैं, यही मेरा गोल है. एंड दैट इज हाउ पीपल फेल इन देयर लाइफ. सो आई एम गोइंग टू हेल्प यू हाउ टू क्रिएट अ गोल फॉर योरसेल्फ. और गोल 4 तरह के होते हैं, health goal, wealth goal, social goal and spiritual goal. So if I get some other time, I'm going to sit with them and help you to how to create a goal for yourself, and that is how it helps your life. Yes sir, good morning. So my name is Aditya. बेटा माइक को ऐसे करिएगा. I want to ask to How to? start a business. I want to build a brand about apparel clothing. Very good. And I studied about some brands like Uniqlo, H&M and so many brands like this. कई बार अब जो ब्रांड्स आ रही हैं लोग अपने ब्रांड भी बना रहे हैं. एक ब्रांड का नाम है अर्बन मंकी. हेलो. अर्बन मंकी नाम की एक ब्रांड है एक, एंड वो काफी अच्छा कर रही है. एंड वो मतलब लाइक जेंस जो न्यू जनरेशन है उनके लिए क्लोथिंग स्टार्ट कर रहा है, और जो बच्चों को पसंद आता है कि कॉलेज लाइफ में और ये सब. और जो मैं क्लोथिंग ही नहीं, क्लोथिंग से अलग भी बहुत सारी चीजें करना चाहता हूँ. जैसे मेरे पापा खुद एक बिजनेसमैन है स्मॉल स्केल पर, उनका से रिलेटेड काम है. ही इज मेकिंग डिश एंटीना एंड पाउडर कोटिंग थिंग्स. सो मेरा बहुत सारे बिजनेस हैं इंडस्ट्री में, बहुत सारी चीजें टेक्सटाइल वगैरह. एंड तो मेरे को ये स्टार्ट कैसे करना है उससे रिलेटेड. जो आपका पापा का बिजनेस को क्यों नहीं करना चाहते आप? सर जैसे पापा को रोज देखता हूँ मैं, वो इतना वर्क नहीं कर रहा है. तो आप करिए, उनको सपोर्ट करिए. सर वो चीजें एक्सपेक्टेशन और अपग्रेडेशन दोनों चीज चाहिए होती है. उस टाइम पे वापस वो चीज नहीं हुई. नहीं हुई तो बेटा आप करिए ना. देखिए व्हाट आई वांट टू टेल यू, मैं जब पढ़ के आया तो माय फादर कॉल्ड मी एंड ही सेज यू वांट टू बी सक्सेसफुल. मैंने कहा बाबूजी क्यों? तो माय फादर सेज तेरे से हाँ या ना पूछा. मैंने कहा जी हाँ. तो बोले यू केम बैक, यू स्टडीड एवरीथिंग, बट तू यहाँ पर आया तो खाली 25% बुद्धि लगाना, अदरवाइज यू विल कोलैप्स एवरीथिंग. मुझे बात उस समय नहीं समझ में आई. He says you came down and you say change everything. It doesn't work like this. What I'm trying to say, if you work with your father, उन्होंने बहुत मेहनत कर आपको आज पढ़ा रहे हैं और अपना एक बिजनेस उन्होंने यहाँ तक लेके आए हैं. आप यदि जाते ही अपने फादर बोले ये बदल दो, ऐसा बदल दो, इसको बदल दो, इनोवेशन लिया और टेक्नोलॉजी लिया, आप उनको ज्ञान देने लगेंगे, he will not listen to you. You need to go by step. First go with him, be with him in his shop, be with him in his factory. फिर आप देखो क्या कमी है, फिर उनको एक आइडिया दीजिए, वो आइडिया पे चल सके. हमारी एज में, आपकी एज में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जो आता है आपको ज्ञान देके जाता है, बेटा ऐसा कर ले, बेटा तो ऐसा कर ले, ये पढ़ाई कर ले, ये बिजनेस कर ले, दोस्तों ने ऐसा कह दिया. और दुख की बात क्या है कि जीवन में जिन्होंने कुछ कामयाबी करी वो ज्ञान दे अच्छा भी लगता है. जिसे जीवन भर अपनी ऐसी तैसी कराई वो भी आपको ज्ञान देके जाता है कि बेटा तो ऐसा पढ़ ले. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो योर फादर व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू स्टैंड बाय हिम. आज जितने भी पेरेंट्स हैं, you see, I have a son of your age, 24 year old. But can you imagine, जब मैं सोशल एक्टिविटी में लगा तो मेरे दोनों बच्चे राधिका एंड पार्थ, I told them you make money, I have no challenge, but there has to be social angle. So my daughter Radhika, she is India's known career counselor and she is Google's highest reviewed girl. And my son helped 6,000 children to come out of drugs. He is a national awardee on drug eradication. है ना, पंजाब गवर्नमेंट सब उसको बहुत बुलाती है ड्रग के ऊपर छोड़ने के लिए. तो मेरा कहने का मतलब है कोई बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं है. आपको बिजनेस, जैसे आपने कहा गारमेंट, तो गारमेंट के ऊपर तो मैं आपको 2 दिन ज्ञान दे सकता हूँ क्योंकि दैट इज व्हाट आई डिड इन माय लाइफ एंड आई बीन अ टेक्सटाइल पर्सन थ्रू आउट माय लाइफ एंड आई डिड लॉट ऑफ थिएटर्स इन माय लाइफ. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, गारमेंट के लिए आप पहले इंटर्नशिप करिए, आप 1-2 साल काम करिए, आप इंडस्ट्री को एक्सपीरियंस करिए और फिर उसके बाद में कोई बिजनेस को शुरू करिए. आप कहाँ रहते हैं? शाहदरा. तो शाहदरा में तो बहुत गारमेंट फैक्ट्री है. यस सर. यदि आपके आसपास करनी है तो यहाँ पे रिठाला में बहुत बड़ी गारमेंट फैक्ट्री है, मैं वहाँ आपको इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ. हमारे फरीदाबाद में बहुत सारी गारमेंट इंडस्ट्रीज हैं, मैं आपको वहाँ इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ. मेरा प्लीज गेट सम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. बात ये नहीं कि आपको लगता है मैं ये कर लूंगा, पर ऐसा नहीं है. जो आपको अच्छा लग रहा है और जो इंडस्ट्री को लगता है वो बेटा बिल्कुल डिफरेंट है. जो चीज इंग्लैंड में बिकती है वो इंडिया में बिके.
जो फैशन स्विट्जरलैंड में बिके जरूरी इंडिया में बिके, और जो चीज दिल्ली में बिकती जरूरी है वो महाराष्ट्र में बिके, जो कलकत्ता में बिके जरूरी कि वो बनारस में बिके. What you need to do, it's a very large, garment is a very large industry. Every industry is very large industry. You just need to make a plan. You need to work over there, have some experience, then make a plan कि आपको करना क्या है. अभी तो आपके पास पहला साल है, खोने को कुछ है नहीं, न घर का बिजली का बिल देना है, न रेंट देना है, न खाने की चिंता, न पीने की चिंता. Explore, and that is how you create a business plan. Creating business plan is all about knowing and then doing. आपको पता है जब मैं ड्रोन में आया 120 किलो, इस 120 किलो शरीर के साथ मैंने 500 डेमोन्स्ट्रेशन फील्ड में करे. That's how I get to know about agriculture, कि कैसे स्प्रे होता है, क्या क्वालिटी है, कितना फील्ड है, कितना क्रॉप है, स्प्रे पैटर्न कैसा है, and you learn so many things. So get experience and then you start a business. पर मेरा फर्स्ट निवेदन आपसे है, support your father. Okay, sir. And he would be very very happy with your support. क्योंकि दुनिया में 2 ही लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं मेरा बच्चा मुझसे आगे जाए. दुनिया का हर फादर चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे जाए, और दुनिया का हर टीचर चाहता है कि मेरा स्टूडेंट मेरे से आगे जाए. एंड दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लर्न टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड टू योर टीचर्स. दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से टू एवरीवन. एंड गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल योर टीचर्स. I hope I answered your question. Yes, sir. Thank you very Thank you, much. sir. Thank you. हाँ जी, यहाँ से भी किसने हाथ उठाया था? जी सर. Morning. Thank you very much. So just. Sir, I want to start a travel business. You want to start a travel business? Yes, sir. Okay. तो सर मैंने उसके लिए काफ़ी ट्राई भी किया कि मैं मैंने मेक माई ट्रिप पे मेल्स डाले कि वो मेरे को इंटर्न बना ले. पर सर मेरे को कोई इंटर्न क्यों बनाएगा अगर मेरे पास कोई, मैं अभी 12th ग्रेजुएट हूँ. तो क्या हो गया? क्यों नहीं बनाएगा कोई? सर मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया उनकी तरफ. हाँ तो रिप्लाई नहीं, जरूरी नहीं कि एक करे. आप 10 जगह करो, 20 जगह करो, आप 50 जगह अप्लाई करिए, क्यों नहीं आएगा? बात ये कि आपके मन में आए कि बॉस, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पढ़ रहे हैं और आपने कहा नहीं बॉस ये डिग्री के बाद तो मुझे गूगल ही चाहिए, एंड गूगल आपको नहीं बुलाया तो आप छोड़ दोगे क्या? What I'm trying to say, if you have to do something and if you are passionate about it, तो आप तो इतनी जल्दी हार गए. आप 50 जगह ट्राई करिए, 60 जगह ट्राई करिए, आप लिखिए उनको क्या वो टू. और मैं आप समझो आप मेरे पास आते हैं, मैं ट्रैवल कंपनी, व्हाई शुड आई हेल्प यू? आपको मुझे कन्विंस करना पड़ेगा सर दिस इज व्हाट द वैल्यू एड आई एम गोइंग टू डू इन योर ऑर्गेनाइजेशन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यदि आप मैथमेटिक्स को लिखो, आप मैं गीता रत्न पढ़ता हूँ या मैं फ्रेश हूँ और मैं आपकी कंपनी में ज्वाइन करना है इंटर्न चाहता हूँ, व्हाई शुड आई कॉल यू? What is so great in you? There are lakhs of children who are doing and they want to become intern. आपको पता है जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं वो हमारे को चिट्ठी लिखते हैं, ना उसके अंदर कोई सर होता है ना कुछ होता है, रिज्यूमे अटैच करके भेज देते हैं एंड दे एक्सपेक्ट कि हम उनको इंटर्न रख लें. तुमको तहजीब ही नहीं, काम कैसे करोगे? Are you getting my point? At my level, many colleges when they say, Dear Shankar, I want to apply, मैं तो उसको वहीं से खारिज कर देता हूँ. लाइफ में इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ फर्स्ट. लर्न टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ. आप यार आपका कॉलेज अभी शुरू हुआ है, आपके शुरुआती दिन है और आप ऐसे यहाँ पर आए. यू टू ड्रेस अप नाइसली. यू आर इनटू अ प्रोफेशनल कोर्स. यू नीड टू लर्न हाउ टू ड्रेस अप नाइसली. यू नीड टू नो हाउ टू टाई योर टाई. यू नीड टू नो हाउ टू पॉलिश योर शूज. आप बिना मोजे के आ गए, आपके बटन खुले हुए. Are you getting my point? When you do something professional, you need to act like that. Just imagine our Prime Minister Modi goes to some country or he goes to parliament every day or he go to any function. वो पता लगा कि जूते चप्पल में आगे शर्ट कहीं जा रही है, पैंट कहीं जा रही है, आपको अच्छा लगेगा? In the same way, if you guys come here, you are into a professional course. You need to know कि मुझे तो, और आप जो अपना भी ब्रांड क्रिएट करेंगे ना, लाइफ लॉन्ग लोग आपको वैसे ही याद रखेंगे. ब्रांड जिन्होंने भी, मैडम आपने कहा ब्रांड के बारे में, सर आपने कहा कि मैं गारमेंट का ब्रांड चालू करना चाहता हूँ. ब्रांड स्टार्ट्स विद यू. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू ड्रेस अप, हाउ यू लुक एट, हाउ यू टाई, डू यू टाई, हाउ यू पॉलिश योर शूज. ऐसा नहीं कि आपको कॉलेज 9 बजे पहुंचना, 8 बजे उठे, मम्मी ने नाश्ता किया नहीं किया, बाल बनाया नहीं करे. यू नीड टू लुक नाइसली. जब तक आप प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर अच्छे से पहनना, सीखना, काम करना, आपका देखिए कॉन्फिडेंस अलग होगा. अभी देखिए जितने लोग यहाँ मैं देख रहा था सुबह, उनके चेहरे पे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या तो रात भर सोए नहीं है.
या सुबह नाश्ता नहीं करके आए, या उनके चेहरे पे इतनी थकावट है। Business is all commitment to yourself. Today morning 7 o'clock, my driver called me. He said, "Sir, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगा." I said, "All right." I got ready, got into the car and drove 2.5 hours. मेरे लिए चॉइस थी ना, मैं सर को फोन करता, "सॉरी सर, ड्राइवर नहीं आया, मैं इतनी दूर नहीं आ पाऊंगा." But I have committed to this college that yes, I will come on time and I reach here on time. मैं यहाँ पर आज सर ने कहा सर एक कप चाय तो पीजिए, मैंने कहा सर नहीं पीऊंगा क्योंकि मैंने बच्चों को 10 बजे का टाइम दिया हुआ। My class starts at 10 o'clock and I will leave at 11 o'clock. मैंने सर की चाय भी नहीं पी, पानी का एक घुट भी अभी यहाँ के पिया है। If I don't commit myself, I won't be able to deliver. बेटा आज भी मेरी एज में I am one of the most expensive speaker in the country. मुझे 90 मिनट पढ़ाने के 5 लाख रुपए मिलते हैं। But to have that commitment, I need to read 52 books a year. और मैं आज भी दिन में 16-17 घंटे काम करता हूँ और एक महीने में खाली 9 लेक्चर लेता हूँ मैं। I speak only 9. I took only 9 sessions in a month of 90 days. That's it. But if I don't commit myself, I won't be. मैं खाली 15 घंटे भी मुश्किल से पढ़ाता हूँ पूरे महीने में। But then for that 15 hours, I need to work very, very hard. Are you getting my point? So I can't come to you with a rotten face. मैं आऊँ, मेरा चेहरा उतरा हुआ, मेरे कपड़े, आप बोले खुद का तो ध्यान देता। आज मैं आपको वजन घटाओ पढ़ा सकता हूँ? Just imagine your college calls me and says, "सर आप हमारे बच्चों को आगे बढ़ाओ कि वजन कम कैसे करते हैं?" आप बोलो साले अपना ध्यान रख पहले। Happiness, I am a happiness coach. BBA करा है और they are not interested. They know कि आप BBA के स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया हमने। Every interview want to know कि what extra you have done in your life. आपने क्या curriculum activity, आप तब बताइए। सर मैं आपकी कंपनी में आऊंगा, मैं ये evaluate करूंगा, मैं नए ड्रो लाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये। You need to have 10 lists. You will immediately say okay coming. And make my trip खत्म अभी नहीं शुरू है, वो तो महान नुकसान के अंदर है। There are thousands of companies which are into profits. Talk to them, serve them, and go there, and work as an intern over there. I'm sure you'll find a place to them. Thank you, sir. Thank you. And anyone else? Yes, sir. Good morning, sir. Morning. My name is Utsav Agarwal. Your name is? Utsav Agarwal. Utsav. सर मेरा की इंटरेस्ट ज्वेलरी सेक्टर के अंदर है। जैसे सर अभी भी कोई जाता है तो तनिष्क के पास जाते हैं, कल्याण ज्वेलर्स के पास जाते हैं, ये सब सर ऑर्गेनाइज सेक्टर सर इन्होंने बना दिया सर। बट ये अभी भी मेकिंग चार्ज अभी लेते हैं 10%, तो सर मैं इसको 5% में करके दिखा सकता हूँ। बट सर मेन इसमें दिक्कत क्या आती है, अगर हम करते हैं तो कैपिटल का इशू है। Don't sell your equity. इस दुनिया में to every entrepreneur here I want to tell you, इस दुनिया में 2 चीजें सबसे महंगी हैं। One is equity and one is information. Keep it to yourself. So please help me कि आप 5 लाख रुपए का ROI कैसे देंगे? And why should we trust you for 5 lakh? सर स्टार्टिंग में आप ट्रस्ट करके देख सकते हो सर। हाँ? ROI तो काफी है। हाँ? एक मिनट क्या बेटा? सर ROI जरूरी है देने। ROI? सर जरूरी है देने। सर ऐसे ट्रस्ट करके दे सकते हो। नहीं, आज एक बात समझिए, आपने रुपया दिया, आप किससे भी रुपया लें, चाहे अपने फादर से लें, चाहे आप बैंक से लें, किसी इन्वेस्टर से लें, वो आपसे पूछेगा ना कि जो रुपया मैं आपको दे रहा हूँ इसका आपका बिजनेस प्लान क्या है। ये नहीं कि मुझे चांदी पसंद है, ये नहीं कि तनिष्क 10% लेता है, बात ये नहीं, वो लेता है तो उसने अपना ब्रांड क्रिएट करा। आपको मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको देने को तैयार हूँ। आई प्रॉमिस यू ऑन दिस, आई एम नॉट जस्ट सेइंग लाइक दिस। 5 लाख रुपए कोई सिस्टम नहीं, मैं समझूंगा क्लास नहीं ली मैंने, आप समझ मेरी बात को। बट यू नीड टू कन्विंस मी ना कि सर आज हमने कई प्रोजेक्ट ऐसे करे बच्चों के साथ जिनको हमने 10-20 लाख रुपए दिए एंड दे बिकम 50 करोड़ रुपए कंपनी बिकॉज दे हैड दैट स्ट्रांग होमवर्क विद दैट। मेरा खाली आपसे यही पूछना है, एंड आई प्रॉमिस यू अग्रवाल जी, आई विल गिव यू 5 लाख रुपीज। यू नीड टू गिव अस अ बिजनेस प्लान, यू नीड टू हैव अ स्ट्रांग आइडिया, और आपने मुझे खाली ये कन्विंस करना है कि सर जो आप 5 लाख रुपए दे रहे हैं उसको मैं ऐसे कन्वर्ट करूंगा। यदि आप अपने आइडिया के बारे में श्योर हैं तो बिलीव मी,
मैं आपको 1 साल के लिए पैसा दूंगा और मुझे आपसे 1 रुपया भी उसके बदले कोई ना ब्याज चाहिए, न रिटर्न चाहिए, न कुछ चाहिए, न कोई परसेंटेज चाहिए। इफ यू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, आई विल फील आई बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या करोगे अब आप? सर आप कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए आप। लिखिए 98 1122 9551। ये मेरा ठीक है, चलिए, ऑल राइट, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी, यस प्लीज, एनीवन एल्स? यस सर, यस सर। वो क्या, चलो आपका मैं सवाल लेता हूँ, माइक दीजिए उनको। जब तक, कैन यू प्लीज हेल्प मी टू रेज योर फिंगर? अपनी उंगली उठाएंगे प्लीज, एवरीवन प्लीज। वैसे भी भारत में सबसे आसान काम है उंगली उठाना। हाँ जी गाइस, कैन यू प्लीज रेज योर फिंगर लाइक दिस एंड कैन यू मूव इट लाइक दिस? थोड़ी नींद भी खुल जाएगी। एंड प्लीज गाइस, please put it on your chin. So which is your chin, this or this? हाँ जी, आपकी चिन कौन सी है कि है? तो आपने यहाँ क्यों रखा? हाँ गाइस, यहाँ क्यों रखा आपने? Can you please help me to understand यहाँ क्यों रखा? बहुत आसान है ना, you just blame me क्योंकि तूने रखा। So the point I want to tell you is, लाइफ में सबसे आसान काम है दूसरों को ब्लेम करना। So learn to know and identify yourself, and that is how you go to next level. Yes sir. Can I please request you to please? I got 7-8 more minutes, so please bear with me. Yes sir. Morning जी। आवाज। बेटा कोई माइक ऑफ है क्या? माइक देख एक बार चालू है क्या? नहीं, ऊपर से ऊपर टक टक कर। अरे चालू नहीं तो बटन ऑफ करता। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, मेरा नाम रांजल कदियाल है। सर, मुझे अपने फैमिली बिजनेस आगे बढ़ाना है, तो सर उसके मतलब कैसे बढ़ाया आगे? नहीं तो उसमें क्या, एक मिनट, क्या दिक्कत है? सर एक तो मतलब मैं जाता हूँ पापा के साथ अपनी शॉप वगैरह पे, तो उधर मुझे समझ तो आता है, और तो फिर वो नहीं समझा आगे कैसे बढ़ाऊँ उसको। किस चीज का बिजनेस है? सर पाउडर कोटिंग का, और एक और बिजनेस है फाइनेंसिंग करवाता हूँ। ऑर्डर कोटिंग है, फाइनेंसिंग। तो उसमें क्या दिक्कत है? सर एक तो पाउडर कोटिंग का जो वो होता है ना, मतलब पेंट टाइप होता है, बहुत सारे कलर। मुझे मालूम है पाउडर कोटिंग क्या है। सर उसमें लोगों की जो डिमांड होती है ना, हर जैसे कोई कंपनी का माल, हाँ, तो सर वही डिमांड की दिक्कत है कि कौन सी डिमांड है वो है, और मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं, मेरे पापा को ज़्यादा एक्सपीरियंस। कोई बात नहीं, तो आप अपने पापा से पूछिए कि पापा आई वांट टू ग्रो योर बिजनेस, आप मेरी मदद करो कि हम मिलके कैसे काम कर सकते हैं। देखिए हर कंपनी का, हर आदमी को, यदि मैं आपको 1.5-2 घंटे यदि मैं आपसे बात कराऊं, आई कैन हेल्प यू कि आपके अपने चैलेंजेस क्या है। तो मुझे लगता है जो आपके पापा इतने साल से बिजनेस कर रहे हैं, उनको अपने बिजनेस का बहुत मालूम है, उनको आइडिया एक्सपीरियंस है। आप उनको ये विश्वास दिलाइए कि डैड आई वांट टू हेल्प यू, और मैं आप ही के बिजनेस को ग्रो करना चाहता हूँ, मुझे बताइए अपने बिजनेस में क्या क्या कमी है, मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ। ठीक है सर। अरे गेटिंग माय पॉइंट? ओके। और आपने खाली ज्ञान नहीं देना, हम ऐसा कर ले, ये कर लीजिए, टेक्नोलॉजी ले लीजिए। यू बी विद हिम, ट्राई टू लर्न, आस्क व्हाट आर द चैलेंजेस। तो उन्होंने कहा ये 5 चैलेंजेस हैं, तो पहले एक चैलेंज पे काम करिए, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर 5वें पे, एंड यू क्रिएट अ बेटर बॉन्डिंग बिटवीन फादर एंड सन, एंड यू आल्सो ग्रो योर बिजनेस। सर ज्ञान तो मेरे को मिलता है, मैं जो भी कुछ बोलता हूँ ना, हाँ, उसके बदले मेरे को ज्ञान मिलता है कि ये वो कर चुके हैं। हाँ कोई बात नहीं, तो आप उनसे पूछे, चैलेंज बता दीजिए मुझे। और ऐसा है कि उनको, वो क्यों, कई बार क्या होता है बेटा कि उनको लगता है कि यार मैंने इतना मुश्किल देखा, मैंने बिजनेस इतना हार्डशिप से शुरू करा, मेरा बेटा परेशान नहीं हो। तो आप उनको बोलना, पापा नहीं, आई वांट टू हेल्प यू, मैं चाहता हूँ बिजनेस ग्रो करो, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं दूसरे क्या नौकरी करूँ या दूसरे क्या बिजनेस करूँ, मैं चाहता हूँ मैं आप ही के साथ रहूँ। आई लव यू डैड। नहीं, आपको मजाक लग रहा है, आप मेरी बात को बिल्कुल ऐसे मत लीजिए।
I'm sure that is what your father expects out of you. Just be with him, create a confidence in him that yes, you want to support him and he would be very great help to you. Thank you, sir. So मैं आपको छोटी सी कहानी के साथ अपनी बात पूरी करूंगा. Anyone else? Any question? Yes, ma'am. ये ले लीजिएगा. हेलो सर, सबसे पहले हर बिजनेस की एक चीज होती है प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट ऐसा कौन सा चूज करें जिससे मतलब बिजनेस की ग्रोथ हो, जो डिमांड में हो, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट चूज करें हम? तो बात ये है कि हम लोग 140 करोड़ देश के लोग हैं, यहाँ पे हर चीज बिकती है. आपका कन्विक्शन किस में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, आप में से किसी को सेल्स पसंद है और जॉब नहीं मिली और आपको लगे कि हमें तो जाके फाइनेंस की जॉब मिलेगी या स्ट्रेटेजी की जॉब मिलेगी. आप जॉब ले तो लोगे क्योंकि आपकी जरूरत है, पर आप उसको एंजॉय नहीं करोगे बिकॉज दैट वाज नॉट योर फोर्टे. यू वांट टू डू सेल्स इन लाइफ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू नीड टू आइडेंटिफाई मैं किससे कन्विंस हूं, मुझे क्या लगता है कि बिजनेस चलने वाला है. आपको क्या लगता है कि मैं प्रोडक्ट लाऊं. फॉर एग्जाम्पल होगा कि परफ्यूम, जब ये जॉब करेंगे, वहां रहेंगे, इंटर्न करेंगे, 2-4 महीने देखेंगे, तब इसको पता लगेगा कि यार ये तो मैं जो सोचती थी वैसा नहीं है. हम लोग क्या करते हैं, कोई भी काम हमें करना होता है, मैं आनंद फानंद में कर लेते हैं. इन माई लाइफ आई नेवर न्यू दैट आई विल बी टीचिंग पीपल. 16 years of my life I was busy with making garments, I was busy with making yarn, I was traveling 300 days a year to 56 countries where I was selling my stuff, and every single morning I was into new flight to new destination. 16 साल लग गए बेटा मुझे जानने में कि बॉस आई एम नॉट मेड फॉर दिस. I want to do something. Social angle is what is looked at about. मुझे कोई बताने वाला नहीं था. उस समय कोई गूगल नहीं था, उस समय कोई हैंड होल्डिंग नहीं थी. आज के टाइम में आपका सब कुछ अवेलेबल है. डू थॉरो R&D ऑन यू. आइडेंटिफाई कि ये 5-6 चीजें हैं, पहले 10 चीजें लिखिए, फिर 10 से 3 में लाइए, 3 से 1 में करिए, उसको एक्सप्लोर करिए, एंड आई एम श्योर यू अचीव योर सक्सेस. मेरा ये मानना है जीवन में हर प्रतिभा अवसर के बिना बेकार है. यू नीड टू फाइंड द आइडेंटिटी, यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ. और मेरा ये मानना है कि आप काम कोई भी करें, आपने ये देखना है कि आपको खुशी क्या दे सकती है, क्योंकि खुशियां तो तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीरों में तो हर कोई मुस्कुराता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपने क्या करना, आइडेंटिफाई करना है कि मुझे खुशी किस चीज से मिलती है. So what anyone else? So I hope I answered your question. You identify, you looked upon कि मुझे क्या करना है, and I'm sure you go to that level. So एक बार एक लड़का था और उसने अपने फादर से कहा कि डैड आई वांट टू डू अ बिजनेस. मैं जो जॉब कर रहा हूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ. तो उसके फादर ने कहा ठीक है, कल मॉर्निंग में आना 8 o'clock एंड मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना चाहिए. वो सुबह 8 बजे उठ के अपने फादर के पास गया और उसके फादर ने कहा बोल क्या करना है. बोले पापा एक बिजनेस शुरू करना है. तो बोले कि किस चीज का करना है. बोले पापा मुझे नहीं मालूम. तो उसने कहा अच्छा एक काम कर, अपने गराज में पुरानी गाड़ी है, उसको जाकर किसी के यहाँ बेच के आ जा. तो बोले किसके यहाँ बेच के? बोले मुझे क्या मालूम, कबाड़ी वाले लेते हैं, कई लोग लेते हैं, तू जाके बेचा. सो वो एक कबाड़ी वाले के पास गया और शाम को करीब 6-7 बजे वापस आया और उसने कहा पापा कमाल हो गया, अपनी जो गाड़ी की कीमत थी 60,000 रुपए लग गई है, मुझे लगता है मैं एक दिन 2-3 दिन कोशिश करूंगा तो 10,000 रुपए तक बिक जाएगी, मैं कल बेचा. उसने कहा अच्छा कल सुबह बात करेंगे. अगले दिन फिर 8 बजे गया. बोले पापा बेचा. बोले नहीं, एक काम कर, ये जो सेकंड हैंड लोग कार में डील करते थे उनके पास जा और उनको बेच के आ. वो 4 बजे वापस भाग के आ गया. बोले डैड कमाल हो गया. बोले क्या हुआ? बोले पापा 25,000 रुपए मिल रहे हैं और मुझे लगता है कि आप मुझे अलाउ करो, मैं जाके बेचूं तो पापा 30,000 तो मिल ही जाएंगे. कहते पापा थैंक यू यार, यदि कल मैं बेच देता तो अपना तो नुकसान हो जाता. बोले कोई बात नहीं, कल बात करेंगे. थर्ड डे मॉर्निंग अगेन ही वेंट टू हिम. कहते डैड गाड़ी बेचा हूं आज मैं.
एंड पापा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो बेस्ट प्राइस होगा ना वही लेके आऊंगा, उससे बेस्ट प्राइस कोई नहीं लेके आ सकता है। तो उसके पापा ने कहा नहीं बेटा, एक काम कर, अपने बाजू में गोल्फ क्लब है तो वहां चला जा और वहां जाके बोल कि हमारे घर में गाड़ी है जो मेरे दादाजी की एंटीक कार है और मेरे फादर को एंटीक कार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो ही वांट टू सेल इट ऑफ। वो 1 घंटे 2 घंटे में भाग के वापस आ गया। कहते पापा पापा कमाल हो गया। बोले क्या हो? बोले मैंने जैसे ही कहा कि मेरे पास एंटीक कार है, लोगों ने बोली 2 लाख रुपए से ऊपर लगाई एंड दे आर रेडी टू पे अप टू 5 लाख। मैं क्या करूं? सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज गाइस, यू ऑल नीड टू आइडेंटिफाई कि मैं अपने आप को किस मार्केट पोजीशन में प्लेस करता हूं। यू ऑल नीड टू वर्क अपॉन कि आपको जो काम आपको करना है, जो प्रोडक्ट आपको बनाना है या जो जॉब आपको करनी है, उसके लिए प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ, आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, लर्न हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ एंड आई फील दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको नॉलेज कितनी है, आज के टाइम में ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट कैसे करते हैं एंड आई फील दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विद दिस नोट, may God bless you and your family today. वेट करूंगा आपकी शादी का। हाँ जी, आप समझिए मैं एकदम स्कूल का मास्टर हूँ, पीछा नहीं छोड़ूंगा। Thank you, sir. It was a wonderful and a very informative session. We have garnered great knowledge on today's topic, problem solving and ideation. I would request Surbhi ma'am to present the momentum, Dr. Shankar Goenka sir.